चलिए स्टार्ट करते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स को हम बस शॉर्ट सिंपल वीडियो रहेगी, बट हर लाइन एक्सप्लेन करूँगा एंड हाईलाइटेड पीडीएफ टेलीग्राम पर आ जाएगा। एज ऑलवेज हमेशा की तरह आ जाएगा। और चलिए शुरू करते हैं। सिंपल सा नियरली 15 मिनट्स का ये पूरा टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। Almost all enzymes are proteins, मतलब almost but not all. Some are not made of proteins, made of nucleic acids known as ribozymes, right? इनको हम क्या बोल देते हैं? Ribozymes. One can depict an enzyme by a line diagram. An enzyme, like any protein, has a primary structure. Example, amino acid sequence of the protein. प्रोटीन कैसे बनता है? अमीनो एसिड के सीक्वेंस से बनता है, राइट? एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज द सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर। एंजाइम के पास सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है. When you look at a tertiary structure, you will notice that the backbone of the protein chain folds upon itself. The chain crisscross itself, and hence many crevices or pockets are made. राइट, पॉकेट्स बोल दो, है ना? पॉकेट्स बनती है जिनमें जाके सबस्ट्रेट फिट होता है और फिर एंजाइम उन पे काम करते हैं, राइट? उनको उनकी जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको कम करते हैं. When you look at a tertiary structure, you will notice that the backbone of the protein chain folds upon itself. The chain चलिए हो गया वन सच. अच्छा, उस पॉकेट को क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट बोलते हैं. An active site of an enzyme is a pocket into which the substrate fits. बता दिया आपको. This enzymes through their active site catalyze the reaction at high rate, ये भी बता दिया. और एंजाइम हेस्टिन करते हैं, जो टाइम होता है रिएक्शन का उसको कम कर देते हैं. Enzyme catalysis differ from inorganic catalyst in many ways, but one major difference needs to be mentioned. That is, inorganic catalysts work efficiently at high temperature and high pressure, while enzymes get damaged at high temperature, say above नियरली 40 डिग्री सेल्सियस तक ही ये डैमेज नहीं होते, उसके अबव में ये डैमेज होने लगते हैं, डीनेचर होने लगते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स है ना? प्रोटीन से ही बने मोस्टली. However, enzymes isolated from organisms who normally live under extremely high temperature, hot vents, and sulfur springs are stable and retain their catalytic power at even at high temperature up to 80-90 degrees Celsius. 80 to 90 degrees Celsius. Thermal stability is an important factor of or quality of such enzymes isolated from thermophilic organisms. राइट, बट ये सिर्फ वही एंजाइम्स कर पाते हैं टोलरेट जो कि थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट होते हैं. थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म बहुत हार्श कंडीशन में होते हैं, राइट? प्रेजेंट पाए जाते हैं. केमिकल रिएक्शन. Let us first understand a chemical reaction. Chemical compounds undergo two types of changes. A physical change simply refers to a change in shape without breaking of bonds. This is a physical process. Another physical process is a change in state of matter, where when ice melts into water or when water becomes a vapor. These are also physical process. However, when bonds are broken and new bonds are formed during transformation, इसको क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन. कुछ बॉन्ड्स ब्रेक हुई और फिर कुछ बन गए, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन. और यही केमिकल रिएक्शन होती है कंप्लीटली. ठीक है. Similarly, hydrolysis of starch into glucose is an organic chemical reaction. Rate of a physical or chemical process refers to the amount of product formed per unit time. It can be defined as the amount of product formed. रेट को कैसे बोल सकते हैं? इट इज़ द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम. ठीक है. रेट ऑल्सो कैन बी कॉल्ड द वेलोसिटी इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, राइट? Rates of a physical and chemical process influenced by temperature, among their other factors. A general rule of thumb is that rate doubles or decreases by half for every 10 degrees Celsius change in either direction. For every 10 degrees Celsius in change in either direction. Catalyzed reaction proceed
at high rates vastly higher than that of uncatalyzed one. When enzyme catalyzed reactions are observed, the rate would be vastly higher and activation energy would be too much lower. ठीक है ना? जैसे कि एक रिएक्शन यहाँ पर दिखाई गई है, CO2 और H2O मिलके क्या बना रहे हैं, कार्बोनिक एसिड H2CO3 इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रहा है, जो कि आपका क्या बोलते हैं, CO2 से H2CO3 बना रहा है। ठीक है ना, कार्बोनिक एसिड CO2 और H2 को मिला के। अगर ये एंजाइम ना हो तो 200 मॉलिक्यूल्स बनेंगे H2CO3 के 1 घंटे में। और अगर वहीं पे ये एंजाइम डाल दें इनके साइटोप्लाज्म में, ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है, तो रिएक्शन की स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। वो कितनी हो जाएगी, 6000 नहीं, 6 लाख, 6 लाख मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड, एवरी सेकेंड। यहाँ पर 200 मॉलिक्यूल्स बन रहे थे हाफ आवर में, 1 घंटे में, इधर पे 6 लाख मॉलिक्यूल्स बन गए 1 सेकेंड में। मतलब देखो एंजाइम की वजह से कितना बड़ा चेंज आ रहा है। एंजाइम्स has accelerated the reaction rate by 10 million times. Power of enzymes is incredible indeed. ठीक है ना? There are thousands of types of enzymes, each catalyzing a unique chemical or metabolic reaction. A multi-step chemical reaction, when each of the step is catalyzed by the same enzyme complex or different enzymes, is called a metabolic pathway. For example, ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। ठीक है ना, तो कितने ग्लूकोज के 2, किससे, कौन सी रिएक्शन से, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कौन सी रिएक्शन हो रही होती है साइटोप्लाज्म में, कौन सी रिएक्शन चल रही होती है, क्या नाम होता है रिएक्शन का, बिल्कुल ग्लाइकोलाइसिस, बिल्कुल बिल्कुल राइट, is actually metabolic pathway. Glucose becomes pyruvic acid from 10 different, इसमें 10 steps होते हैं ना glycolysis में। ठीक है, catalyzed metabolic reaction. When you study respiration, you will study this. At this stage, you will know that metabolic pathway with one or two additional reaction gives rise to a variety of metabolic end products. अच्छा, end products भी मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि पायरुविक एसिड बनता है, अगर ईस्ट में फर्मेंटेशन होता है तो उससे प्रोडक्शन ऑफ मतलब अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, इसलिए डिफरेंट कंडीशन और डिफरेंट प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकते हैं। राइट, वो डिपेंड करता है कौन सा एंजाइम आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, और एक और चीज़, एंजाइम्स रेट को नहीं बढ़ा रहे हैं, एक्चुअली एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। राइट, ये भी कंफ्यूजन होता है, तो वो भी क्लियर रखिएगा। हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्जन्स? To understand this, we should study enzymes a little more. We have already understood the idea of an active site. The chemical or metabolic conversion refers to a reaction. The chemical which is converted into a product is called substrate. Hence, enzymes, proteins with three-dimensional structure including an active site, convert a substrate into product. ठीक है ना? Substrate से क्या बनता है? Product. अब ये सब तो हम जानते ही हैं। ठीक है ना? इसके बाद ये समझने कि सबस्ट्रेट पहले, सबसे पहले बाइंड होता है किससे, सबस्ट्रेट में एक्चुअली एक पॉकेट बनती है, मैं क्या बोला था, एक एक्टिव साइट प्रेजेंट होती है। ठीक है, जहाँ पे जाके एंजाइम फिट होता है सबस्ट्रेट में, नहीं नहीं सॉरी, एंजाइम में सबस्ट्रेट फिट होता है, सॉरी, राइट। तो वो एक्टिव साइट का होना बहुत जरूरी है। ठीक, उसके बाद सबस्ट्रेट हैज टू डिफ्यूज टुवर्ड्स द एक्टिव साइट, पता है ना भी, देयर इज दस एन ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स, दैट इज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, राइट। ठीक है, एंजाइम ई स्टैंड फॉर एंजाइम, दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज ट्रांजिएंट फिनोमेना, ये ट्रांजिएंट फिनोमेना होता है। ठीक है ना, अनस्टेबल होता है। ड्यूरिंग द स्टेट वेयर सबस्ट्रेट इज बाउंड टू एंजाइम एक्टिव साइट, अ न्यू स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। वेरी soon after the expected bond making is completed, the product is released from the active site. In other words, the structure of substrate gets transformed into the structure of product. The pathway of this transformation must go through the so-called transition state structure. There could be many more altered structures states between the stable substrate and product. ठीक है ना, ऐसी बहुत सारी ट्रांजिशन स्टेट बन सकती हैं बीच में, जो कि
वेरीफाई करती हैं कि स्टेज अनस्टेबल होती है। ट्रांजिशन स्टेट, स्टेबिलिटी इज समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी स्टेटस ऑफ द मॉलिक्यूल और द स्ट्रक्चर। हेंस व्हेन वी लुक एट पिक्टोरियली थ्रू अ ग्राफ इट लुक्स लाइक समथिंग, ऐसा मतलब कुछ ग्राफ दिखता है। देखो ये है पोटेंशियल एनर्जी, ये है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, कितनी रिएक्शन प्रोग्रेस हो रही है। जैसे ट्रांजिशन स्टेट पे क्या हो रहा है, एक्चुअली कन्वर्जन हो रहा है सबस्टेंस का प्रोडक्ट में, राइट। जितनी ज़्यादा देखो एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतना कम रेट होगा, जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतना ज़्यादा रेट होगा, राइट। चलिए इसके बाद बात करते हैं द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट पोटेंशियल एनर्जी कंटेंट, एक्स एक्सिस प्रोग्रेशन ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन, ये बता ही दिया मैंने आपको, ठीक है ना। ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन हो गया, ये ट्रांजिशन स्टेट हो गया, एक्टिवेशन विदाउट और ये विथ एंजाइम, ये सबस्ट्रेट, ये प्रोडक्ट बन गया, राइट। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम। you notice you would notice two things: the energy level difference between substrate and product, p is at lower end than s, the अच्छा p लोअर पे क्यों है, क्योंकि प्रोडक्ट फाइनली जब सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बना, फाइनली जब सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बना, ठीक है ना, तो हमें कोई एनर्जी सप्लाई नहीं करनी पड़ी ना, हीट वीट करके मतलब कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़ा, एक्टिवेशन एनर्जी को हमें प्रोवाइड करना पड़ा, ठीक है ना। वो एंजाइम ने प्रोवाइड कर दी, लोअर कर दी, कम कर दी, ठीक है ना। उसकी वजह से जो रिएक्शन होती है, कैसे डिफाइन करोगे आप, एंडो है कि एक्सोथर्मिक है। अगर ये जो आपको सबसे से प्रोडक्ट फाइनली बन पा रहा है, ये जैसे कि इसमें बन चुका है, तो एक्सोथर्मिक होगी, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी हमें मिली है, ठीक है ना। सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट ही नहीं बन पा रहा, मान लो ऐसा आके इधर ही रह जाता, तो एंडोथर्मिक होती है, हमें और एनर्जी उसकी लोअर करनी, एक्टिवेशन एनर्जी है कि नहीं, हमने ओवर ही कम कर ली तो हमें एनर्जी मिल जाएगी बची हुई। अगर हम एक्टिवेशन ही एनर्जी ओवर कम नहीं कर पाए तो हम भैया देनी पड़ेगी एंडोथर्मिक, और अगर बीच में है तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम की स्टेट में होगा, ठीक है ना। चलिए the difference in average the difference in average energy content of S from that of this transition state is called activation energy, ठीक है। क्या डिफरेंस आ रहा है सबस्ट्रेट की एनर्जी में ट्रांजिशन स्टेट में, उसको बिकॉज ट्रांजिशन स्टेट तक तो पहुंचना, उसके बाद प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो ही गया है, ठीक है ना। चलिए नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन कैसे होता है। अच्छा ये जो ई एस बॉन्ड होता है बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, इसलिए अनस्टेबल होता है, ठीक है ना, ट्रांजिएट होता है, राइट। चलिए एंजाइम से पहले सब सॉरी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना, फिर एंजाइम और प्रोडक्ट अलग अलग मिल जाते हैं, ठीक है। द कैटालिटिक रोल ऑफ एन एंजाइम एक्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, पहले सबसे पहले सबस्ट्रेट एक्टिव साइट से जोड़ता है एंजाइम की, देन फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट, फिट हो जाता है उसमें, द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप, फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट, ठीक है। उसके बाद बहुत टाइटली सबस्ट्रेट से जुड़ जाता है। द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम नाउ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद सबस्ट्रेट breaks the chemical bonds of the substrate and the new enzyme product complex is formed, उसके बाद एक नया एंजाइम प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। द एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एंड द फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड टू अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट एंड रन द कैटालिटिक रोल, वापस से साइकिल उसकी अगेन चालू हो जाती है। अब नाउ द फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। Factors affecting enzyme activity. The activity of enzyme can be affected by the change in condition which can alter the tertiary structure of protein, क्योंकि जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन को, वही बहुत सारी जो अपनी एंजाइम एक्टिविटी, बायोकेमिकल रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही हैं सारी बॉडी में, टर्शियरी स्ट्रक्चर ही प्रोटीन का ज़्यादातर बैलेंस करता है, ठीक है ना, सब अल्टर मतलब मेंटेन करता है। These include temperature, pH change in substrate concentration or binding of specific chemical, right। तो टेम्परेचर एंड pH का देखेंगे सबसे पहले, तो इसमें आपको टेम्परेचर और pH में जो इन दोनों का ग्राफ वो रफली सेम दिखेगा, ठीक है ना, होता ही है सेम, बिकॉज
ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑप्टिमम पीएच पर ही हाईएस्ट एक्टिविटी होती है एंजाइम की, ठीक है। A narrow range of temperature pH, each enzyme shows highest activity at particular temperature and pH known as optimum, ठीक है। Activity declines both below and above the optimum value. Low temperature preserves the enzyme in temporary inactive state, whereas high temperature denature कर देता है, destroy कर देता है, ठीक है ना, हीट के थ्रू। अच्छा ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला सॉरी ग्राफ इम्पोर्टेंट है बहुत, ठीक है। इधर देखना वी मैक्स अपॉन 2 है, इधर वी मैक्स, इधर के एम, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ substrate. With the increase in substrate concentration, the velocity of the enzymatic reaction rises at first. The reaction ultimately reaches a maximum velocity which is not exceeded by further rise in concentration of the substrate. This is because the enzyme molecules are fewer than the substrate molecules, and after saturation of these molecules, there are no free enzyme molecules to bind with the additional substrate molecules. The activity of an enzyme is also sensitive to the presence of specific chemicals that bind to the enzyme. When the binding of the chemical sets off enzyme activity, the process is called inhibition. Inhibition का मतलब जो binding activity है वो enzyme की मतलब खत्म हो जाती है, तो inhibit करने लगते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, inhibitor बोलते हैं, right? When the inhibitor closely resembles the substrate in its molecule structure and inhibits the activity of the enzyme, it is known as competitive inhibitor. Due to its close structural uh, similarity with the substrate, the inhibitor competes with the substrate for the substrate binding site of the enzyme. Consequently, the substrate can't bind, and as a result, the enzyme's action declines. Inhibition of succinate dehydrogenase by malonate, which closely resemble the substrate succinate in structure. Such competitive inhibitors are often used in bacterial control of bacterial pathogen, ठीक है ना। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज का इन्वेशन मैलोनेट के साथ होता है क्योंकि दोनों की स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। एनालॉगसली आपको एनालॉगस होते हैं दोनों एक दूसरे के, है ना। इसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। 6 क्लासेस में डिवाइड है एंजाइम्स मेनली, ऑक्सी और 4 to 13 सब क्लासेस हैं उसके बाद, ठीक है। ऑक्सीडो रेडक्टेज डिहाइड्रोजनेज, ठीक है, दोनों बोल सकते हैं। अच्छा एक का रेड्यूस हुआ एक ऑक्सीडाइज हुआ, जो ऑक्सी रेड्यूस हुआ था वो ऑक्सीडाइज हो गया और जो ऑक्सीडाइज हुआ था वो रेड्यूस हो गया। मतलब जो ऑक्सीडो रिडक्शन करा, मतलब ऑक्सीडेशन एक का तो दूसरे का रिडक्शन बिटवीन टू सबस्ट्रेट। ट्रांसफर इज क्या करता है, किसी भी ग्रुप का ट्रांसफर करता है अदर देन एच, हाइड्रोजन को छोड़ के सारे ग्रुप का ट्रांसफर करता है। जैसे एस जी है तो जी का एच डैश का ट्रांसफर हो गया एस में, और जी का ट्रांसफर हो गया एच डैश में, राइट। हाइड्रोजन को बस नहीं मानते क्योंकि हाइड्रोजन तो सब ऑलरेडी लिंकिंग में प्रेजेंट होता है। हाइड्रोलाइसिस की बात करते हैं तो एंजाइम कैटलाइजिंग हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर ईथर पेप्टाइड ग्लाइकोसाइडिक सी हैलाइड पीएन बॉन्ड्स, ठीक है ना, हाइड्रोलाइसिस। और लाइसिस क्या करते हैं, लाइसिस का मतलब तोड़ना होता है, तो रिमूवल करते हैं ये ग्रुप्स को फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलाइसिस, लीविंग डबल बॉन्ड्स, ठीक है ना। क्या हुआ, लाइसिस का मतलब तोड़ना, तो सी एक्स सी वाई है, तोड़ के एक्स और वाई को अलग करके सी डबल बॉन्ड सी, मतलब सेचुरेटेड से अनसेचुरेटेड हो गया। इसका आइसोमरेज, isomerase includes all enzymes catalyzing interconversion of optical, geometric और positional isomer. Ligases जोड़ते हैं दो कंपाउंड को, ठीक है, joining of CO, CS, CN, PO, etc. bonds. कोफैक्टर, कोफैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, important. Cofactor enzymes composed of one or several polypeptide chain. However, there are a number of cases in which non-protein constituents, also called cofactors, are bound to the enzyme to make the enzyme cataly- uh, catalytically active. अच्छा क्या हॉलो एंजाइम एक वर्ड होता है,
जो कि कोफैक्टर और एपोएंजाइम को मिला के बोलते हैं जिसको, ठीक है ना। हॉलो एंजाइम मीन्स कोफैक्टर और प्लस एपोएंजाइम। अच्छा, तीन टाइप के कोफैक्टर, एपोएंजाइम प्रोटीन पार्ट होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर होता है। तीन टाइप के कोफैक्टर देखे जाते हैं, प्रोस्थेटिक, कोएंजाइम एंड मेटल आयन। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि टाइटली बॉन्ड होते हैं एपोएंजाइम से, ठीक है। फॉर एग्जांपल peroxidase एंड कैटालेज which catalyze the breakdown of hydrogen peroxide into water and oxygen। हीमन में एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है और ये पार्ट होता है एक्टिव साइट का एंजाइम की, जहाँ पे एंजाइम एक्ट करता है और एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है। कोएंजाइम ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, लेकिन इनका एसोसिएशन ट्रांजिट होता है, उतना टाइट नहीं होता जितना प्रोस्थेटिक का होता है, ठीक है ना। Coenzymes serve as cofactor in number of different catalyzed reaction। Essential compound में जो vitamins, many coenzymes vitamins होते हैं, like coenzyme nicotinamide, adenine dinucleotide, NAD and NADP contain vitamin niacin, इनमें विटामिन niacin होता है। A number of enzymes require metal ions for its activity, which form coordination bonds with side chains at active site and at the same time form one or more coordination bond with the substrate। Example क्या है? Zinc is a cofactor for the proteolytic enzyme carboxypeptidase। अच्छा, ये कोफैक्टर है किस एंजाइम के लिए? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज के लिए, जिंक, ठीक है। तो ये भी एक मेटल आयन रिक्वायर्ड हुआ किसके लिए? एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज को चाहिए पड़ता है ऐसा कोफैक्टर। कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव्ड। कैटालिटिक एक्टिविटी ही लॉस्ट हो जाती, 0% नहीं, खत्म ही हो जाती सीधा, लॉस्ट फ्रॉम द एंजाइम विच टेस्टिफाइज दैट दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, राइट। चलिए समरी एक बार रीड कर लीजिएगा एंड बस जो भी डाउट हो बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर